No? No, ma'am. No, ma'am. Okay, no worries, no worries. Which I have asked all of you to just buy simple one book. That is your NCRT book. There is no need for any other help book apart from NCRT. But NCRT it's mandatory for everyone. Okay. अभी तो शायद I think bookshops be closed until 31st. Yes, So ma'am. yes. So I'll try to share the book online. I'll share. Bache, is everyone in the group? So I'll share the book also in the form of PDF. Okay. So Yes. we were okay. So Bache, I'm repeating it for you, Arsh. And yes, Aryan, you were also not present in the last class. Aryan Hassan. Aryan, आपके स्कूल शुरू हो चुके हैं स्कूल में? Have you joined DPS again? Yes, ma'am. Okay. Have you started with your classes also? Yes, ma'am. Okay. Navreet, you too? Okay. Some change the school also, है ना? DPS. Yes, ma'am. Yes. So, okay. So, बच्चे अभी we were doing this chapter 2. Panisha, याद है बेटे? We are doing this chapter 2, which is biological classification. Arsh, don't worry, बच्चे. We'll repeat everything. So don't worry, even if anything is missed out, we are going to repeat all the syllabus once again during revision. Okay. So biological classification. Biological classification का मतलब होता है grouping of organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. जैसे देखने में एक जैसे green है तो they are plants, non-green है तो animals. So there are different types of organisms which are divided on the basis of their similarities and dissimilarities. On the basis of similarities and dissimilarities. And classification system was first given by, who will tell me the answer? Classification system was first given by, yes? Ma'am, Carlos Linus. Yes, Aristotle. it was Aristotle, which I gave you in writing also. ठीक है, अगर कोई Linnaeus बोल रहा है then also it is fine. अगर कोई Aristotle बोल रहा है then also it is fine. तो एरिस्टोटल एंड लीनियस, कार्लस लीनियस, ये साइंटिस्ट हम नाम बार बार पढ़ेंगे. जो बच्चे पुरानी क्लासेस लगा रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ दीज टू नेम्स. तो दे बोथ गिव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लास. यस नवी बोलो. In MCQ, if both names are given, so which we have to take the The earliest one is Aristotle. Earliest one is Aristotle. Okay. okay. Or they both gave this two kingdom system of classification. दोनों ने ही ये बताया, दोनों ने ही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया. दे बोथ सेड कि एक तो है किंगडम प्लांटे, जो ग्रीन कलर के हैं, दे ऑल बिलोंग टू किंगडम प्लांटे. और जो नॉन ग्रीन है, दे बोथ बिलोंग टू एनिमेलिया. तो दे यूज दीज टर्म्स, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Who is a new student here? Krish. Okay, Krish, welcome to the class. Krish, you are from which school? Am I audible to you, Krish? Yes, ma'am. And you are from Joseph, St. Joseph? No, ma'am. Okay, you're from which school, bete? I haven't taken admission anywhere. No, about I'm asking about 10th class, bete. My new public school. Okay, you're from New Public. Okay, Yes. okay, Krish. Okay, welcome to the class, Rajay. So, Krish, we have just now started with this. We are doing this second chapter. So I have just now explained biological classification. This is chapter 2 in your NCRT. Chapter 1 बिल्कुल basic chapter है. Chapter 2 is the real chapter. तो इसमें biological classification में बात हो रही है. कहते हैं biology को classify किया गया, या तो बोल दिया kingdom Plantae और kingdom Animalia. एनिमल समझ रहे हो और प्लांट समझ रहे हो, विच आर ग्रीन दे आर प्लांटेड, जो नॉन ग्रीन है उनको बोल दिया एनिमेलिया. दे डिड नॉट इंक्लूडेड फंजाई, बैक्टीरिया इन देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो इसके बाद जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय
RH Whitaker, हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है, नोट्स सब बना रहे हैं साथ साथ, तो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट द नोट्स. I have compiled notes from different books, so there is no need to buy any other book apart from NCERT. आपके MCQs भी हो जाएंगे अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनोगे और अपने नोट्स फॉर्म करोगे. I'll ask someone to share PDF files also. तो RH Whitaker gave 5 kingdom system of classification. ये आप 9th में पढ़ चुके हो. 5 kingdom system में अगर आप लोगों को याद हो तो एक था Monera, Protista, Fungi, and lastly Plantae and Animalia. I guess अगर आपको याद हो तो आपने 9th में एक पूरा चैप्टर था Diversity. जिसमें यस डाइवर्सिटी में आपने ये चैप्टर में पूरे में ही पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें इस क्लासिफिकेशन में फंजाई भी इंक्लूड हुआ है, बैक्टीरियाज भी इंक्लूड होंगे और पैरामीशियम और अमीबा भी. तो दिस सिस्टम इज बेस्ट बिकॉज इट हैज इंक्लूडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और अगर हम डिटेल में बात करें तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोनेरा में all the organisms which are unicellular and prokaryotic. Prokaryotes. Yes, prokaryotic. Prokaryotic organisms are those which do not have well-defined nucleus. Example इसके अंदर थी बैक्टीरिया. तो मोनेरा में ऐसे organisms होंगे जो बैक्टीरिया जैसे हैं या बैक्टीरियाज हैं. Then it was protista. Protista भी unicellular है. Eukaryotes. Very good. It is eukaryotic. और यूकैरियोटिक का मतलब दे हैव न्यूक्लियस. और इसमें एग्जांपल दे आएगा अमीबा, पैरामीशियम. समझ रहे हो? Yes. और अगर आप लोगों को याद हो किसी को भी कि आपने 10th में पढ़ा था मल्टीपल फिशन होती है मलेरियल पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम. Yes, या Yes, ma'am. वो जो प्लाज्मोडियम है, ओके. तो प्रोटिस्टा जो में प्लाज्मोडियम भी आएगा. नेक्स्ट वाज फंजाई. फंजाई में Saprophytic. yes, पहले हम अगर हम उसकी इसको डिफरेंसेस के फॉर्म में करेंगे तो सारे यूनिसेल्युलर थे. ये यूनी है, ये यूनी है. ये क्या हो जाएगा? मल्टी सेल्युलर. Multicellular. दे आर द यूकैरियोटिक. यस. Yes. एंड दे हैव हेटेरोट्रॉफिक. ये हेटेरोट्रॉफिक थे. हेटेरोट्रॉफिक जो खाना नहीं बना सकते, बट दे वर सेप्रोफिटिक. यस सुखमन, व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोफिटिक? Ma'am, feeding on dead and decaying matter. Yes, which feed on dead and decaying plants and animals. So they are saprophytic. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्लांटे. प्लांटे नाम से पता चल रहा है they are plants, they are multicellular. बिल्कुल वैसे ही चलेंगे. किरणप्रीत, can you tell me, are they eukaryotic? Yes, ma'am. Okay, they are eukaryotic. Yes, Kashish, can you tell me they are hetero or auto? Kashish? Yes, Kashish? Speak out, beta. Your mic is not working. You're not audible. Yes, speak out. Yes, they are auto. Yes. Autotrophic. क्योंकि plants हैं तो खुद खाना बनाएंगे. They are green in color. Lastly, there were Animalia. एनिमेलिया भी बिल्कुल इसकी तरह ही चलेंगे. दे आर मल्टीसेल्यूलर, दे आर यूकैरियोटिक. बट अब ऑटोट्रॉफिक की जगह क्या आ जाएंगे? Heterotrophic. तो सिंपल सी डिवीजन दी RH Whitaker ने इन द ईयर 1969. ये भी आपको याद करना है. धीरे धीरे आपको सबको लर्न भी होना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. तो बच्चे अब ये देखो, इसमें अगर आप ध्यान दो तो आपको 1969 में RH Whitaker he gave 5 kingdom system of classification and he said Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Now I am going to discuss about Monera. I hope Krish and Arsh आप लोग दोनों को समझ आ रहा है. Yes, speak out. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, Arsh? Yes, ma'am. Okay.
So बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था. Now I am going to start with the first kingdom, kingdom Monera. Monera में आपने अभी पढ़ा, इसमें आते हैं बैक्टीरियाज. देखो you can see it from here. इसमें सारे बैक्टीरियाज हैं. They are unicellular, they are prokaryotic. तो जो अब आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं and they are elaborated, एनसीईआरटी में it's just of single page और आप लोगों ने around 10 या 6-7 pages आप लिख चुके हो already. तो मोनेरा में आपको ब्रीफिंग सुनो पहले, जिस बच्चे ने नहीं किया हुआ. मोनेरा में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियाज. तो बैक्टीरियाज दे आर यूनिसेल्यूलर एंड दे आर प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब आता है कि दे हैव, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस. दे हैव वेरी सिंपल न्यूक्लियस. आर्यन, अगर हम बात करें इसकी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. दे हैव सेल वॉल, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल, they have cell wall, they have cell wall, they have cell membrane. Peptidoglycan. Yes, peptidoglycan, cell membrane. And they have nucleoid DNA, which is naked DNA. Naked DNA is called as Nucleoid. nucleoid. Very good. It is called as nucleoid. बस इसकी definition याद रखना, naked DNA nucleoid. Okay. Then it has a plasmid also. Who will tell me the definition of plasmid? Anyone from boys side? Ma'am, No. ma'am. No. Boys. Ma'am, Boys. may I, Kiran? No. Only from boys side. Girls, I know. Okay. No, Sukman. Anyone from boys side? Aditya, Aryan, anyone? Navreet. जिसने ये टॉपिक किया हुआ है. ओके, चलो तन्वीर आप बताओ बेटे फिर. Ma'am, it is extra double circular chromosomal DNA. हाँ, तो अगर देखो आपने ये ध्यान दिया अर्श, और यस गॉट इट बच्चे. आई एम हैप्पी कि एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग. बच्चे सबको ना एक्टिव हो जाओ क्लास में. दिस इज क्वाइट सिंपल. अगर आप क्लास में अटेंटिवली बैठोगे तो दिस इज नॉट एट ऑल हार्ड. प्लाज्मिड देखो, प्लाज्मिड आपको मैंने बनाया था. एक तो डीएनए है, लेकिन इससे अलग डीएनए. तो प्लाज्मिड को बोल दिया एक्स्ट्रा डीएनए. दो बने हुए हैं तो डबल. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. आई एम रिपीटिंग, क्योंकि डीएनए था ऑलरेडी व्हिच इज न्यूक्लियोइड. इसके अलावा एक्स्ट्रा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल सर्कुलर डीएनए. सेल वॉल समझ आ गया प्लाज्मिड सबको? यस और नो? प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी. बिल्कुल सिंपल है. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए. एक होता है नॉर्मल डीएनए विच इज नेकेड डीएनए न्यूक्लियोइड, और उसके अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं. और मैंने आपको बताया इनके बाहर जो सेल वॉल है, प्लांट्स में आप पढ़ते हो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट इन दिस केस द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ Peptidoglycan. peptidoglycan. And cell membrane is made up of lipids and proteins. Yes, lipoprotein. Very good. देखो अगर क्लास में एक्टिव रहोगे तो आपको सब याद होगा. Lipoprotein, lipids and protein. और मैंने आपको बताया था they have a special cell wall which is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan वही चीज है सेम जो आप ओकरा, भिंडी का साइंटिफिक नेम है ओकरा, OKRA. जब भिंडी को हम काटते हैं तो उसमें जो म्यूसिलेजिनस, जो ग्लूई सब्सटेंस निकलता है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन. सेम पेप्टाइडोग्लाइकन की कंपोजिशन बैक्टीरिया के वॉल पे है. इसीलिए बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन. बैक्टीरिया कहीं भी पाए जाते हैं, आपके पेट में है इकोलाई गुड बैक्टीरिया, उबलते पानी में, हॉट सल्फर स्प्रिंग में बैक्टीरिया. Ma'am, what is role of peptidoglycan in okra, मतलब in ladyfinger? लेडी फिंगर कुछ नहीं बच्चे, उसके अंदर अगर आप देखते हो इट हैज हाई
जो वॉल है, अगर आपने भिंडी को देखा है ना, उसमें ऐसे वैसे होते हैं कंपार्टमेंट्स विद Yes, सीड्स। ma'am. तो कुछ नहीं, म्यूसिलेजिनस अपने आप को प्रोटेक्शन कॉज करते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, क्योंकि अदरवाइज ये अंदर से हॉलो है, इंसेक्ट आएगा वो भी सैप भी खा लेगा और इसका ये सीड भी खा लेगा, क्योंकि इसके में मल्टीपल सीड्स होते हैं। आपने देखा है ना, भिंडी में बीज बहुत होते हैं। Yes, तो ma'am. उसको, हाँ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ग्लूई सब्सटेंस होगा तो इंसेक्ट्स नहीं खाते उसको, सैप को, क्योंकि वो चिपक जाएंगे उसके साथ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म, अपने आप को बचाने के लिए। तो सेम चीज, सेम कंपोजिशन है इसके अंदर, पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीन, डेकेड डीएनए, प्लाज्मिड। जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है उसी बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल चीज होती है जिसका नाम क्या है, सेक्स पिल्लाई। यस, thread-like structure. यस, बिल्कुल छोटे छोटे धागे से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस एंड दे आर कॉल्ड एज सेक्स पिल्लाई। ये हम बैक्टीरिया का एक बना। यस, बोलो, मेड ऑफ, यस Pyelin. समवन, यस, पाइलिन प्रोटीन, पाइलिन Pyelin. प्रोटीन, ठीक है। तो सेक्स पिल्लाई, पिल्लाई साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके नाम पे पाइलिन प्रोटीन बन गया। तो सेक्स पिल्लाई, जिसके पास प्लाज्मिड है उसके पास सेक्स पिल्लाई होंगे। तो अभी जब मैंने प्लाज्मिड नहीं बनाया था तो सेक्स पिल्लाई नहीं बनाए, अब मैंने प्लाज्मिड बनाया तो उसमें सेक्स पिल्लाई। एंड समटाइम्स दे हैव लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट एट वन एंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज Flagella. 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 What is the function of flagella? It provides locomotion. Yes, yes, function of flagella is locomotion. और इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। Ribosomes. Yes, yes, cytoplasm, and very good. And they have ribosomes also. कौन से टाइप के होते हैं ribosomes? 70s. राइबोसोम की दो टाइप्स होती हैं, एक 80s, एक 70s। क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं, राइबोसोम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70s। अब आप डिटेल में पढ़ोगे एक चैप्टर में, व्हाट डू यू मीन बाय एस। एस इज यूनिट, स्विडबर्ग यूनिट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। 70s साइडबर्ग यूनिट साइंटिस्ट के नाम के बाद है। इसको कई बार हम कई किताबों में आप पढ़ोगे लिखा हुआ है एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दोनों चीजें ठीक है। तो एक तो होता है 70s जो प्रोकैरियोट्स में, और हम में पाया जाएगा 80s जो यूकैरियोट्स में। How many of you are clear with the diagram? Please raise your hand and be quick. Okay, Kiran, Tanveer, Panisha, Kashish, be quick. If the diagram is clear, quickly raise your hand. Okay, so yes, Aryan, Arsh, Krish, Navreet, Soumya. अच्छा, आपके जहाँ पार्टिसिपेंट्स के पास ही कहीं आई थिंक ऑप्शन है रेज हैंड की, रेज योर हैंड। ओके नवरीत, यस, ओके आदित्य, ओके अर्श, क्रिश, वेरी गुड। सो एवरीबडी इज क्लियर विद द डायग्राम, इट इज वेरी सिंपल। तो अब आपने Ma'am, you have not labeled the mesosome. मीजोसोम, यस यस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया मीजोसोम। आपने देखा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, this cell membrane is invaginated, जो ब्लू कलर का पार्ट बनाया ना मैंने, this blue, इसमें इन्वेजिनेशन हुई हुई। तो जहां पे भी कोई भी चीज की जब उसको अलग से पार्ट में बनाया हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। मीजोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देते हैं, इसका सिर्फ नाम है ये मीजोसोम। मीजोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन and function of mesosome is to increase surface area for respiration. The function of mesosome is to increase surface area for respiration. Okay, mesosome का function क्या है? To increase surface area for respiration. तो क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पेट में रहता है तो इसमें यहाँ पे कई बार in some books you will find circular जो structures, इसके बीच बीच में ऐसे सर्कल्स बने होंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। Please draw this. These are called as respiratory enzymes. Respiratory enzymes. So ये आपके पास आ गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब मोनेरा में, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज।
Yes, can I move to the next page? Yes, Yes, done. ma'am. Okay. अब मोनेरा में बैक्टीरियाज अलग अलग तरह के आएंगे, तो हम मोनेरा की अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा में उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले दी हुई है आर्के बैक्टीरिया, हमने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लिखी हुई है, बट आई एम गोइंग विद एनसीईआरटी टुडे बिकॉज इट विल बी इजी फॉर कृष एंड अर्श आल्सो टू अंडरस्टैंड। सो आपके एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कंप्लीट होगा, जो मैंने लिखवाया है वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखते। आर्के बैक्टीरिया, आर्चे भी बोलते हैं, आर्की भी बोलते हैं। आर्के बैक्टीरिया इज, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, एंशियंट मीन्स पुराना। तो अब ये नहीं है कि पुराने बैक्टीरियाज हैं या बूढ़े बैक्टीरियाज हैं। आर्के बैक्टीरियाज मतलब ये है the bacteria which existed million years ago, they are the same bacteria, they have not changed, they are living in same harsh condition। ये आज भी वैसी कंडीशन में रह रहे हैं जब अर्थ हमारी बहुत हार्श कंडीशंस में थी, तो इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया एंशिएंट बैक्टीरियाज। एंड एंशिएंट बैक्टीरिया में they can survive in different harsh conditions, जैसे they can live in salt, extreme salt, इतना नमक वाला पानी या इतनी नमक वाली salt, and they are called as हेलोफिल्स। उबलते पानी में रहते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। मैंने आपको बताया था मणिकरण साहब में अगर कोई गया है तो वहां पे चावल भी उबल जाते हैं, इतना पानी गर्म होता है। और वहां पे जो चने हैं, काले चने, अगर आप ब्लैक चना को, ये चिकपी सफेद चने को डालते हो पानी में, वो पानी अपने आप उबल जाते हैं उसके अंदर, इट इज सो हॉट। तो ये वहां पे भी बैक्टीरियाज सरवाइव करते हैं, दे आर लिविंग इन सो मच हार्श कंडीशन। हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं, गर्म पानी को बोलेंगे थर्मा, तो कोई भी गर्म चीज होगी थर्मो, और कई बार तेजाब में भी रहते हैं एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, दे लिव इन वेरी हॉट एसिडिक कंडीशन। और कई बार ये मिलेंगे मार्शी एरियाज में। मार्श एरियाज वो होते हैं, आपने कभी कार्टून्स में देखा है पानी में से बबल्स निकलते हैं, कई बार कार्टून्स में आपने देखा होगा, कई बार किसी रिवर में ऐसे बबल्स निकल रहे होते हैं, वो मीथेन गैस होती है, वो पानी ऐसे दिखाते हैं। जनरली ये इट इज नॉट कॉमन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज वो होते हैं जहाँ पे मीथेन गैस इवॉल्व होती है पानी में से, और ऐसे कंडीशन में भी ये रहते हैं। और उनकी एग्जाम्पल क्या है, मिथेनोजेंस, ये हेलोफिल्स है। तो आर्के बैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज व्हिच आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई सॉल्ट कंडीशन हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स लाइक थर्मोएसिडोफिल्स, मार्श एरियाज लाइक मिथेनोजेंस। ये उन बैक्टीरिया से अलग है जो अब हमारे पेट में है या पानी में है, उन बैक्टीरिया से अलग है, बिकॉज दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्योंकि अगर किसी को पता है बैक्टीरियाज गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर, किसको पता है इस बारे में, रेज योर हैंड। ओके, किरणप्रीत, ओके, तनवीर, सुख। अच्छा, यही चीज तो अगर याद हो, लुइस पास्चर ने बताया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। फनीशा, वी आर डूइंग आर्के बैक्टीरिया। फनीशा, एम आई ऑडिबल बेटे? फनीशा, बच्चे, वी आर डूइंग दिस पार्ट आर्के बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया स्क्रीन पे देख रहे हो फनीशा, कि आर्के बैक्टीरियाज आर दोज व्हिच आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई सॉल्ट, हेलोफिल्स, hot springs. Okay, Fanisha, got it, bete. Like hot sulfur springs, thermoacidophil, like marshy areas, methanogen. तो अभी हम पढ़ रहे थे कि आर्के बैक्टीरिया दे आर स्पेशल। सॉरी, मैं आपको एक बात बता रही थी कि लुइस पास्चर जो है, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि बैक्टीरिया दे गेट किल्ड एट, उसको लगा कि दूध जो हम पीते हैं उसमें बैक्टीरियाज की वजह से बहुत बीमारियां होती हैं। लोग जो दूध पीने के बाद उनको पेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वॉमिटिंग्स लग जाती हैं। तो उसने एक पास्चराइजेशन इफेक्ट दिया, क्या बोला कि बैक्टीरियाज दे गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर, तो दूध को उबालो।
उबालना मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही दूध उबलता है आप उसकी गैस बंद कर देते हो एंड यू ब्रिंग इट डाउन टू इमीडिएट टू लोअर नॉर्मल रूम टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री से आपने क्या किया, 100 डिग्री उसको बढ़ा दिया और एकदम गैस ऑफ कर दी। इट इज कमिंग डाउन टू नॉर्मल रूम टेम्परेचर, 40 डिग्री हो गया। थोड़ी देर बाद आप देखते हो ठंडा होना शुरू हो जाता है। दिस जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे किल होते हैं वो तो मर गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो जिंदा रह गए, जैसे अभी देखा आपने हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं उबलते में, वो इतने सडन टेम्परेचर चेंज को विथस्टैंड नहीं कर पाते एंड दे गेट किल्ड इमीडिएटली। दिस इज व्हाट इज पास्चराइजेशन, बाय गिविंग देम हीट कोल्ड शॉक। एकदम गर्म कर दिया, उबाल दिया और एकदम ठंडा कर दिया, हीट कोल्ड शॉक दे दिया उनको। तो दिस वाज पास्चराइजेशन और यही हम करते हैं। आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। दिस वाज द रीजन। इसमें मैंने एक चीज स्पेशल लिखवाई है आपको, मिथेनोजेंस। दिस वन, मिथेनोजेंस, दे आर प्रेजेंट इन दी गट ऑफ ruminant, जैसे काउस, बफलोस। इनके गट में मिलेंगे, इनके पेट में मिलेंगे एंड दे आर द रीजंस, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। मिथेनोजेंस जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है मीथेन जनरेट करेंगे। मैम मीथेन, यस मैम, सो वी कैन से दैट जो काउज और बफलोस हैं वो भी थोड़ी सी मीथेन गैस एक्सर्ट करते हैं। उनकी जो वो मिथेनोजेंस है ना, वो ruminants के स्टमक में वो जनरेट नहीं करेंगे। उनके अंदर जो जो गोबर बना है, दैट इज काउ डंग, वो जब आप बर्न करते हो दैट जनरेट्स दिस बायोगैस। ओके मैम। हाँ, दैट इज यूज्ड एज एन फ्यूल। अगर आपको पता है कि जो बायोगैस प्लांट्स हैं, बायोगैस प्लांट अगर आपने कभी सुना है उसके बारे में, तो उसमें हम बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस इज व्हाट, मीथेन गैस। घरों में आप सप्लाई कर दोगे तो वो घर में आपकी चाय बन जाएगी या आपका दूध उबल जाएगा, ये जो भी आपको फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होती है। तो वो मीथेन गैस इज बायोगैस व्हिच इज आल्सो नोन एज गोबर गैस। तो मार्शी एरियाज में जो रहती हैं मिथेनोजेंस, दे आल्सो लिव इन द गट ऑफ ruminants such as cows and buffaloes and they produce methane gas. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम इफ दिस इज अ बायोगैस और गोबर गैस, तो अगर घर में सप्लाई किया आपने तो वो तो गोबर की बदबू आएगी खाने में से भी और घर में से भी। इज इट? यस? No, ma'am. नो, क्यों? यस, हु इज इट? टेल मी द आंसर। यस, यस, ट्राई बेटे, वेरी गुड। क्या आप मैम चलिए। मे Ma'am, बी because in cow dung, the only methane gas is not the only thing that is releasing smell. Okay, नहीं, if I say 70% of it has methane gas, then There's still 30% things that might exert other smells. जो ज्यादा क्वांटिटी में होगी, it will generate that methane gas and it will produce foul smell. अच्छा, गोबर आपने देखे, अगर आप लेके आते हो, if I'll ask you to bring cow dung cakes, they'll produce foul smell for sure because it is a fecal matter, किसी की potty है ना, समझ रहे हो ना? It will for sure produce smell. the smell is lost in the process. Okay. No, the answer is, बच्चे जब हम गैस फॉर्म में यूज करते हैं ना, even if we are using LPG, I'm happy both of you tried very well. बच्चे अगर घर में अगर आपके आती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर कभी आपने ध्यान दिया है तो आपने ये देखा होगा, फनीशा या नवरीत या सौम्या, कि जब गैस लीक होती है तो कितनी बदबू आती है। आप बोल देते हो मम्मा ये गैस लीक हो रही है, प्लीज स्विच कर दो उसको, सिलेंडर में से लीक हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है। इज इट? Yes, ma'am. ma'am. यस। लेकिन जब उसी गैस पे मम्मा खाना बनाते हैं, जब आपकी चपाती बन रही है या आपकी स्पेशल कस्टर्ड बन रहा है या कुछ भी, एनीथिंग इज कुकिंग, क्या उसमें से उसकी गैस की स्मेल आती है? नो। सेम इज द केस विद काउ डंग गैस या मीथेन गैस। जब वो बर्न हो जाती है, it escapes into the atmosphere, it will not produce any foul smell. अगर वो वहां पे रहेगी, लीक होगी, then it will produce foul smell. I hope my point is clear with everyone. So Yes, burning ma'am. plays a major role. Yes, yes, वो बर्न हो गई तो खत्म हो गई। मीथेन बर्न होने के बाद पता है क्या बनेगा? CO2 remains in the air.
it goes off and it has no foul smell. तो आप लोगों को क्या ये स्क्रीन क्लियर है? ये वाला टॉपिक आर्किबैक्टीरिया में 3 पार्ट्स बताए हैं मैंने, बहुत सिंपल. दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी and I want all of you to learn this part also, because NCERT, I told you in the last class also, it is considered as Bible for biology student. जो बच्चे नीट की तैयारी करने लगे हैं, अगर वो NCERT को अच्छे से कर लें तो उनका काफी पार्ट नीट का क्लियर हो जाएगा, बिकॉज 80% ऑफ द क्वेश्चन दे कम फ्रॉम दिस NCERT, और जो रेस्ट 20% है वो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना है. डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, बट आपको सिर्फ क्लास में अटेंटिवली बैठना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर आर्किबैक्टीरिया, दे आर यू बैक्टीरिया. आर्के तो कह दिया मैंने, कहा बहुत पुराने बैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया तो मैंने नाम ले दिया था, दे आर एंशिएंट बैक्टीरिया बिकॉज दे लिविंग इन एक्सट्रीम. यू बैक्टीरिया जो है, यू का मतलब जब भी आएगा बायो में तो इट मींस ट्रू. यूकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया. तो ट्रू मतलब ये नहीं है कि सच में ये सच बोलने वाले हैं. ट्रू मींस दे हैव द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया. तो ट्रू बैक्टीरिया जो मतलब जिनकी असली में बात की जाती है. और लास्ट टाइम आपको याद होगा आदित्य ने बार बार एग्जांपल दी है. देयर इज अ बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट योर मिल्क इनटू कर्ड. आदित्य, what is the name? No, no, no. Lactobacillus. Yes, lactobacillus. Lactobacillus lab. आपने ये ट्रेडिशन देखा होगा. इट्स एन ओल्ड ट्रेडिशन. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, घर में दही जमाना है तो वो क्या करेंगे, पुराने दही से एक छोटा सा चम्मच दूध में डाल देते हैं, वार्म वाटर, वार्म मिल्क में. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस एट योर प्लेसेस? रेज योर हैंड. दूध से दही बनाने का प्रोसेस. ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन. ओके, तो वो क्या करते हैं, इट्स साइंस ओनली माय डियर फ्रेंड्स, इट इज साइंस ओनली. क्योंकि वो साइंस में क्या कर रहे हैं, दे हैव पेरेंट्स, दे आर पुटिंग दिस बैक्टीरिया इनटू द मिल्क. एंड बैक्टीरियाज, माय डियर फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू, बैक्टीरियाज डबल देमसेल्फ आफ्टर एवरी 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. बस ये कहानी भूलनी नहीं. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भूलना ही नहीं. ये बैक्टीरिया है ना, अपने आप को तोड़ देगा 2 हिस्सों में आफ्टर एवरी 20 मिनट. तो बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है, तो आपने क्या किया था, दूध में बैक्टीरिया डाल दिया था. और बैक्टीरिया का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट मिल्क इनटू लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड. कर्ड क्या होता है, लैक्टिक एसिड, व्हिच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. कहते हैं दही रोज लेना चाहिए डाइट में. इट इज कंसीडर्ड एज अ मील, as a important part of your meal because it has vitamin B12. 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक में. विटामिन B12, विटामिन B12 होता है दही में, जो कहीं से नहीं मिलता. तो अब हम यू बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं. तो बैक्टीरिया में अभी बताया, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कितना काम का बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज दे आर गुड फॉर योर हेल्थ, गुड बैक्टीरियाज. दूसरा बैक्टीरिया वो है जो आपकी डिजीजेस कॉज कर रहा है. जैसे मैंने बताया था, कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, टेटनस, आपके गले में इन्फेक्शन आपके आते हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. हम कहते हैं गला खराब हो रहा है, बुखार आएगा पक्का. वो क्यों? क्योंकि आपकी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गए. फिर आपको डॉक्टर्स क्या दे देते हैं, एंटीबायोटिक. 3 दिन का कोर्स होता है. जिसको नहीं पता वो चीजें ये समझो, क्योंकि कल को आप मेडिकल लाइन में जाने वाले हो. ये दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. कि एंटीबायोटिक्स का 3 days का या 2 days का कोर्स, जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं, मे बी टेक 2 days और मे बी 5 days कोर्स होता है, जो आपके बैक्टीरिया को, और जैसे कहते हैं जहर जहर को मारता है, वैसे ही बैक्टीरिया किल्स बैक्टीरिया. तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ही डालते हैं, और बॉडी उनको उनसे लड़ने के लिए गर्म होती है, टेम्परेचर हाई होता है, और फिर वो उसको किल करके बॉडी ठीक हो जाती है. तो नाउ आई एम कमिंग टू ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया में ही हमारे पास आएंगे, आई एम रिपीटिंग, ट्रू बैक्टीरिया में ही हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया. व्हाट इज द अनदर नेम फॉर साइनोबैक्टीरिया? Blue green algae. Blue green algae. BGA, very good. And I told you why it is blue green, because cyan color, peacock blue. मैंने बताया था मोर पंख अगर आप देखते हो, पीकॉक ब्लू, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, दैट इज सियान कलर, ब्लूइश ग्रीन. बैक्टीरिया है ये, लेकिन दे आर मिसनोमर्स. कई बार नाम इनका दिया जाता है एल्गी, बट दे आर नॉट एल्गी एट ऑल, दे आर बैक्टीरियाज. तो साइनोबैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, यू बैक्टीरिया, एक ही बात हो रही है. इसके अंदर
जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, अब हम यू बैक्टीरिया के बारे में आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या साइनोबैक्टीरिया हैं, दे आर ट्रू बैक्टीरिया, दे हैव सेल वॉल, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन की है। दे मे बी यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल के हैं, लेकिन कई बार यूनिसेल्यूलर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे लगता है एक थ्रेड बीडेड चेन, जैसे मोतियों की माला बन गई है। और कई बार ये बहुत सारा बंच बना देते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। तो दे मे बी यूनिसेल्यूलर, दे मे बी फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब चेन, और दे मे बी कॉलोनियल। दिस इज यूनी, दिस इज फिलामेंट, दिस इज कॉलोनी। तो दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इनमें से हम एक ये टाइप पढ़ेंगे, बिकॉज ओनली साइनोबैक्टीरिया दे आर फिलामेंटस। उसमें आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ an organism which is nostoc. nostoc एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फिलामेंटस है, उसके अंदर ये सारे सेल्स फिलामेंटस होंगे और बीच में एक आधा सेल बहुत बड़ा होगा which is special and is known as heterocyst। सिर्फ सुनना है आपने, बाकी सारे सेल्स को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और सिर्फ इनमें से कई बार कुछ बड़े सेल्स आ जाते हैं which are large in size and are different from the vegetative cells and it is called as heterocyst। इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। तो इसमें ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, हम Ma'am, can बैक्टीरिया you पढ़ रहे हैं। please explain this again? Actually, I was disconnected due to poor network. ओके, नो वरीज बेटे, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तो यू बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं, यू बैक्टीरिया दे आर टू बैक्टीरियाज। another name is cyanobacteria, another name is blue green algae। एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है। आपको यू बैक्टीरिया पूछा गया, साइनोबैक्टीरिया पूछा, बीजीए पूछा, ब्लू ग्रीन एल्गी। दे मे बी यूनिसेल्यूलर as I have made the diagram, uni, they may be filamentous, filamentous मतलब in a chain beaded structure, or they may be in a colony, इकट्ठे रह रहे हैं बहुत सारे। they have a cell wall because बैक्टीरिया में तो हमेशा सेल वॉल होती। इसमें एग्जाम्पल मैंने साइनोबैक्टीरिया के एक एग्जाम्पल दी, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में ये बीडेड है चेन, लेकिन कई बार इसमें एक सेल बीच बीच में सेल ऐसा होता है, स्पेशल सेल विच इज नोन एज हेट्रोसिस्ट। बाकी सारे सेल्स को बोलते हैं वेजिटेटिव, बीच में एक आधा होगा हेट्रोसिस्ट। दिस इज आल्सो हेट्रोसिस्ट, दिस इज आल्सो हेट्रोसिस्ट। इसके अंदर ऐसा क्या होता है स्पेशल, इसमें होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, जिनको हम स्पेशल नाम देते हैं निफ, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स। इतने मजेदार है कि दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, नेम बैक्टीरिया व्हिच कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो आंसर इज इट इज ओनली नॉस्टॉक। नाइस, नहीं नॉस्टॉक, नेम दिए बोला है, name the bacteria which can fix atmospheric nitrogen। it is, yes, you can say it is cyanobacteria, but to be precise it is nostoc। and which specialized cells help in fixing nitrogen? Name the Heterocyst. heterocyst। heterocyst is a specialized cell which help in fixing nitrogen from atmosphere। तो इतना important है कि हवा में नाइट्रोजन है। कौन मुझे बताएगा हमारी हवा में कितनी नाइट्रोजन है? amount of nitrogen present in an air is what percentage of? 78। Yes, very good, very good। 75. It is 78। तो इतनी नाइट्रोजन है, फिर भी हम लोग उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो एक ऑर्गेनिज्म मिल गया हमें जो दिखता भी नहीं है, इट इज माइक्रोस्कोपिक एंड कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। इसीलिए नॉस्टॉक की मारो मारी है। नॉस्टॉक इज गिवन टू द फार्मर्स जहां पे नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ पैडी फील्ड। पैडी मतलब होता है राइस, राइस इज रिच इन प्रोटीन। तो राइस फील्ड में हमें ये नॉस्टॉक डाल दोगे तो अपने आप फिक्स करेंगे वो नाइट्रोजन। तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, इवन फॉस्फोरस और मे बी सल्फर। क्लियर एवरीवन? am I clear with this topic now? Yes, Excuse me, ma'am. yes, Ma'am, these are easily available. हाँ बच्चे, these are, yes, this nostoc is can be grown in abundance
as I told you, I did my PhD on cyanobacteria only. So we used to make this in abundance. बच्चे अगर आप cyanobacteria की बात करोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे जब आप normally when you grow in parks during rainy season तो आप देखते हो कि तिलकन सी होनी शुरू हो जाती है mucilaginous substance आप पैर रखते हो तो फिसलन सी होती है, is it? तो वो जो Yes, एक ma'am. Yes, और ma'am. और जब ड्राई सीजन आता है वही जो जो आपका जो बिल्कुल म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस था उसको थोड़े दिनों में देखोगे तो वो एक स्क्रैप की फॉर्म में, पपड़ी की फॉर्म में, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े से निकलने शुरू हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज नॉस्टॉक। तो वो नॉस्टॉक अगर प्योर फॉर्म में चाहिए तो अब मेरे पास अगर एक ऑर्गेनिज्म है और आसपास अच्छा न्यूट्रिएंट है, बारिश बहुत अच्छे से हो रही है, दे विल ग्रो इन अबंडेंस। तो हम इनको ग्रो करते थे बोटानिकल गार्डन में फॉर फार्मर्स ओनली, और उनको इकट्ठा करके, क्योंकि राइस का किसी को अगर ये पता है पैडी या राइस लगाने के लिए आपको नी डीप वाटर चाहिए, किसको ये बात का पता था? Yes, ma'am. किसको ये पता है, रेज योर हैंड, कि जब आप पानी में नी डीप वाटर मतलब घुटने तक पानी चाहिए और पानी के अंदर बैठ के लगाना पड़ता है राइस। तो अगर इतना अबंडेंस में पानी है तो आप लोग यस शाबाश, एवरीबडी इज अवेयर, तो इतने पानी में तो एल्गी ग्रो करेगी करेगी। तो इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लूइश ग्रीन एल्गी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट हेल्प्स इन, इट इज गिविंग फ्री नाइट्रोजन। जो फर्टिलाइजर पे पैसा बर्बाद कर रहे थे तो फ्री नाइट्रोजन मिल रही है। बच्चे आई हैव शेयर्ड दिस वीडियो लास्ट ईयर एज वेल, आई विल शेयर दिस वीडियो वंस अगेन। क्या मैंने आपको एक इंसेक्टिवोरस प्लांट की वीडियो सेंड की थी? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में अगर आपने देखा है दैट प्लांट कैन ईट इंसेक्ट्स, कॉकरोच को खा लिया उसने या उसने इंसेक्ट बग को खा लिया। व्हाट इज द रीजन दैट दे eat and they feed on this? Can anyone tell me? They cannot make sufficient food by photosynthesis. Okay, yes, anyone else? Good, well tried. अच्छा कुछ भी बोलो, आई रियली लाइक कि मेरे को कोई भी कुछ भी आंसर दे दे, कोई बात नहीं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। question? My question is why there are few plants which are insectivorous? Why some plants they feed on insect? क्यों कीड़ों मकोड़ों को खा लेते हैं? Like Venus flytrap, bladderwort. एक की तो मैंने वीडियो देखी, just look. I'll keep on sharing important videos. Maybe they are very tasty. No, okay. No, the reason is, okay, I'll tell you the answer. My dear friends, they all these plants are growing in the soil which is deficient in nitrogen. क्योंकि उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, वो फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपनी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। They feed on insects so as to take in nitrogen from the body of insects. चींटी देखिए, एंट अपने से Yes, ma'am. अपने से 50 to 60 टाइम्स ज्यादा बड़ा चीज उठा सकती है। एक छोटी सी चींटी होती है, इतना बड़ा पत्ता उठा के जा रही होती है। छोटी सी चींटी होती है, इतना बड़ा ब्रेड का पीस कॉलोनी में उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो सोचो उनकी मसल पावर कितनी होगी। मसल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, दे आर रिच इन प्रोटीन। कई लोग तो चींटियों को खाते हैं इन ऑर्डर टू complete their nutrient diet, nitrogen diet. They are rich in protein. तो अब ये नहीं है कि आप चींटियां खाना शुरू कर दो, या आपको चींटी काट रही है तो कोई बात नहीं, मेरे को प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। या आपको काट रही है तो इसको खा लो, it is not good, but I am telling you the fact that some people they feed on this ants because they are rich in protein, and soil is deficient. If the soil is deficient in nitrogen, then plants can be insectivorous also. Up, I'm moving to next part. Again, a very interesting big type. There is a term which is algal bloom. Algal bloom. तो algal bloom आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई पंजाब की साइड, बच्चे who stays in Punjab, raise your hand. Who is staying in Punjab right now? Kiranpreet, okay. Ma'am, not staying, but our farmhouse is there. Okay, okay. I'm also Okay. not staying, but like our Middle. hometown is in Punjab.
ओके ओके, सो आप लोग रेगुलर विजिट करते हो तो आपने देखा होगा पंजाब में जाते आते रास्ते में देयर आर सो मेनी पॉन्ड्स व्हिच आर ग्रीन इन कलर. पॉन्ड्स हैं, छोटे Yes, छोटे ma'am. Yes, छोटे छोटे पॉन्ड्स. यस, एंड वो ग्रीन इसकी वजह से है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है. इट इज द फिनोमिनल ब्लूम, एल्गी ब्लूम. आई टेल यू अ स्टोरी. एल्गी जो है, एल्गी ब्लूम जो है उस पानी में आती है जहां पे नाइट्रोजन रिच हो, नाइट्रेट्स और फास्फोरस. अब ये चीजों को याद रखना है क्योंकि नीट में यही क्वेश्चन आते हैं, कौन से एल्गी ब्लूम किस सॉइल में या किस वाटर में होती है विच इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. तो अगर कोई पॉन्ड, सपोज बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, अब उस पानी में डॉग्स जा रहे हैं नहाने, लोग यूरिनेट कर रहे हैं, गाय भैंसे उसमें जा रही है, गोबर लग रहा है, एंड दैट वाटर इज बिकमिंग एनरिच्ड. ये जो यूरिया मैंने आपको बताया, यूरिन रिच इन नाइट्रोजन, पॉटी फीकल मैटर, गोबर दैट इज रिच इन नाइट्रोजन. आसपास कोई गोलगप्पे वाला है तो वो अपने बर्तन वहीं धो रहा है, पानी वहीं फेंक रहा है, दैट इज अगेन न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग इनटू दैट वाटर. आप नहाने चले गए, उस पानी में किसी ने, बच्चा गया तो बच्चे ने यूरिनेट कर दिया, आपकी बॉडी से गए न्यूट्रिएंट्स. So that water is becoming nutrient enriched and it is getting enriched in what, nitrates and phosphates. Nitrogen and Nitrates and phosphates. So algal bloom is tremendous increase in growth of algae due to the presence of nitrates and phosphates in water. Write down this definition. I guess सबको समझ भी आ गया है. Tremendous increase, the tremendous increase in amount of algae or growth of algae due to the presence of nitrates and phosphate in water. This is called as algal bloom. excuse me मैम. Yes. मैम जो गोलगप्पे वाला भैया होता है वो सच में ऐसे करता है? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. बच्चे पॉन्ड्स के आसपास कई लोग खड़े नहीं होते, जैसे रोड साइड पे आपने देखा होगा कि कोई चाट वाला है या कोई फ्रूट वाला है तो स्क्रैप गंदे पानी में फेंक देते हैं. इज इट? अब तो बच्चे सबसे दूर रहने को बोला गया, अब तो अब गोलगप्पे पता नहीं कब मिले, तो अभी तो मुश्किल है मिलना. So don't worry, it's India, you can have anything from anywhere, so don't worry about it. Our body is immune. मैम after hearing this I feel like vomiting. नहीं बच्चे नहीं, it's India, we have immunity, so don't worry about anything. ऐसा नहीं, मैं तो I'm just giving you an example. It's not like कि I don't want you to take anything from outside. Okay? Oh, तो ma'am, लिखो can इसे. you just repeat the definition once? Yes, I'm coming to this definition only. Tremendous increase in growth of algae. The tremendous increase in growth of algae due to the presence of tremendous increase in growth of algae due to the presence of nitrates and phosphate in water. Due to the presence of nitrates and phosphate in water. अब बैक्टीरिया या तो थे ऑटोट्रॉफिक या थे हेटरोट्रॉफिक. इज इट? याद है? Yes, ma'am. Yes हाँ, ma'am. या तो थे ऑटोट्रॉफिक और या फिर थे हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक तो चलो इनकी बात ही अलग होगी कि हेटरोट्रॉफिक दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड. लेट्स कम टू दिस ऑटोट्रॉफिक फर्स्ट. ऑटोट्रॉफिक में दो तरह के थे, एक थे फोटोट्रॉफिक, एक कीमोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. इसमें ध्यान से सुनना, फोटो ऑटोट्रॉफ्स नाम से पता चल रहा है कि दे मस्ट बी ग्रीन, तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दी है या समझाई है, नॉस्टॉक, बिकॉज ये ब्लू ग्रीन एल्गी को था, तो फोटो ऑटोट्रॉफ. कीमो में अभी अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी, कीमोट्रॉफ्स होते हैं which can synthesize their food with the help of nitrates and phosphate in soil, and chemoautotroph may be example bacteria
like nitrosomonas या नाइट्रोकोकस, लिखवाया हुआ है आप लोगों को ये ऑलरेडी, इज इट? Yes, ma'am. हाँ ये Yes, सब लिखा ma'am. हुआ है आपने, डोंट वरी. सिर्फ आई एम डिक्टेटिंग इट टू क्रिश एंड आर्यन एंड हर्ष. तो ऑटोट्रॉफ में पता चल रहा है या तो वो खाना अपने आप बनाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोट्रॉप्स, या फिर वो बनाएंगे केमिकल की प्रेजेंस में, कीमोट्रॉप्स. तो फोटोट्रॉफ में एग्जांपल दे दिया नॉस्टॉक, कीमोट्रॉप्स में एग्जांपल दिया नाइट्रोसोमोनस. हेटरोट्रॉफिक सबसे ज्यादा अबंडेंट है. दे आर द बैक्टीरियाज व्हिच आर, yes, they are the bacteria which are most abundant, जो हमारी डिजीज भी कॉज करते हैं. और इसमें एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है. दे मे बी डिजीज कॉजिंग और दे मे बी यूजफुल. इसमें डिजीज कॉजिंग में जो हमारी बीमारियां कॉज कर रहे हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, Vibrio cholera. yes, cholera, typhoid, these are the diseases. Sorry, tetanus, ये सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कॉज करते हैं. एंड दे मे बी यूजफुल आल्सो, लाइक राइजोबियम. किसने सुना हुआ है राइजोबियम के लिए? राइजोबियम इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. किसने सुना हुआ है राइजोबियम? वेरी गुड नवरीत, ओके. सुखमन, तनवीर, ओके, गॉट इट. तो राइजोबियम, यस कशिश. तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है which helps in fixing nitrogen from air. और अगर किसी को याद हो, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर आप किसी भी सीरियल क्रॉप, किसी भी दाल का या फिर मटर का प्लांट, सपोज एक प्लांट है, उसको अगर आप जमीन से अपरूट करोगे तो उसमें यू विल सी येलो बीड्स, येलो बीडेड स्ट्रक्चर ऑन द रूट्स. क्योंकि इसकी रूट्स पे कौन सा बैक्टीरिया रह रहा है? राइजोबियम. राइजोबियम हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. तभी दालें जो है नाइट्रोजन इनरिच होती हैं बिकॉज उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. एंड दिस बैक्टीरिया इज यूजफुल बैक्टीरिया बिकॉज इट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. तो जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं, दे ऑल हैव दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट्स. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको मैंने बताया, ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, एग्जांपल इज नॉस्टॉक. कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनस. हेटरोट्रॉफिक में बताया इट मे बी सिम्बायोटिक और पैरासिटिक. पैरासिटिक में आपने पढ़ लिया कॉलरा या टाइफॉइड या टेटनस. और सिम्बायोटिक में एग्जांपल आ गया राइजोबियम. तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर ये क्वेश्चन आता है, गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. नोट्स बच्चे, आई लास्ट समवन टू शेयर द नोट्स, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, सिर्फ आपने सुनना है. एंड प्लीज बाय योर एनसीईआरटी आल्सो. नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. कहते हैं इसका क्या फायदा है, बैक्टीरिया का क्या फायदा है, कोई बताएगा? व्हाट इज द यूज? Ma'am, they help to change few things from a particular stage to a next stage, like just like curd. यस. तो अभी आपने फायदा सबसे बड़ा तो यही पढ़ा अभी, दूध से दही बनाने का. और अभी याद होगा तो मैंने बताया था आपको, Nitrogen. यस, फिक्सिंग नाइट्रोजन. अभी देखो एंटीबायोटिक्स, कोई बीमारी होती है यू गो फॉर एंटीबायोटिक्स. अभी बताया मैंने फिक्सिंग नाइट्रोजन इन केस ऑफ लेग्यूम्स. यस. So these are the useful effects of bacteria. Even they help in preventing, there are some good bacteria also in our stomach. जरूरी है ये हमारे बैक्टीरिया, ताकि कोई और बैक्टीरिया आपके पेट में ना आए. And this is E. coli, Escherichia coli. This is a good bacteria which is present in your stomach. अब याकुल्ट पीते हो, किसी कोई पीता है बच्चा याकुल्ट, तो कहते हैं गुड बैक्टीरियाज हैं. दैट गुड बैक्टीरिया इज ई कोलाई. दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर गट. गट मतलब स्टमक. कई बच्चे तो 2-3 पी लेते हैं. एक्सेस ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट गुड, बट दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम ध्यान दें तो इट इज नॉट ऑलवेज द यूजफुल इफेक्ट्स. हमें इसी में इसके बैड इफेक्ट्स भी देने हैं. तो इसी में हम बताएंगे दे आर
the reasons for number of diseases. They can cause many diseases like cholera, tetanus, typhoid. Even in plants, they cause citrus canker. एक बीमारी होती है जो It is caused in plants. yes, citrus canker, yes, बहुत सारे plants में भी citrus canker, citrus नाम से पता चल रहा है, orange में, lemon में पिलपिले से हो जाते हैं. अब ऑरेंज लेके आते हो वो पानी पानी सा हो जाता है एक साइड से, नींबू लेके आते हो वो खराब हो जाता है. दैट इज बिकॉज दे प्रोड्यूस नंबर ऑफ डिजीजेस. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. यस. तो थर्ड क्लासिफिकेशन है, पहले आर्के बैक्टीरिया थी, यू बैक्टीरिया थी, फिर हम लास्ट पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा. और किसको याद है इसके बारे में? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड so many things about the mycoplasma. Who will tell me the? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, they are called jokers of microbiology. Yes, very good. Who is it? Ma'am. किसने दिया है? I'm Tanveer. Okay, Ma'am, Tanvir, may very I, good. Kiran? Yes, They yes, don't yes. have any cell wall. Ma'am, it is the smallest cell. Yes, very good. So it is the smallest living cell. Does not have cell wall. Yes. तो बैक्टीरिया में देखो, ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी. तो बैक्टीरिया में जो ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर आप ये सेल मेम्ब्रेन ही हटा दोगे, दिस आउटरमोस्ट लेयर, साइज छोटा हो गया ना. तो माइकोप्लाज्मा दे डू नॉट हैव सेल वॉल. That is why they are called the smallest living cell. तो क्वेश्चन आता है, name the smallest cell. तो आंसर is mycoplasma. Mycoplasma, they are also responsible for causing number of diseases. Mycoplasma smallest living cell है. अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, they are called as jokers of microbiology. Why they are called as jokers of microbiology? Because Because they keep changing their shape. They change, keep changing. yes, सेल वॉल नहीं है तो कभी अपने आप को स्माइली बना देते हैं, कभी सैड फेस, लाइक जोकर्स. They keep on changing their shape. So that is why they are assumed as jokers of microbiology. तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने ये पढ़ा. And they are responsible for causing, जितने छोटे हैं ना, कह रहे हैं सबसे smallest cell है. प्यारे बच्चों, this is the smallest living cell. But this can cause deadly diseases in plants as well as animals. Animals में आपने नहीं लिखा हुआ, आप ये लिखना, जिसने आप लोग नोट डाउन करना. Foot and mouth disease in cattle. इस खतरनाक बीमारी है कैटल्स में. जिनके घर में कैटल्स हैं या किसी ने अगर विलेजेस में देखी हैं, तो कैटल में वो हाथ, उनके लिम्स में, उनके पैरों में और मुंह में झाग बननी शुरू हो जाती है और वो अपने आप पैर नहीं टिका पाते नीचे जमीन पे. दिस इज सो इरिटेबल एंड इट कैन कॉज देयर डेथ आल्सो. दिस इज द फुट एंड माउथ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय स्मॉलेस्ट लिविंग सेल व्हिच इज माइकोप्लाज्मा. तो आज आपने जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी मोनरा के बारे में, मोनरा पहले हमने पढ़ा, सॉरी, क्लासिफिकेशन मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. 5 किंगडम में से आज हमने सिर्फ मोनरा पढ़ी है. और मोनरा में आपने क्लासिफिकेशन में सबसे पहली टाइप पढ़ी आर्के बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर एंशिएंट बैक्टीरिया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सट्रीम कंडीशन, दे कैन बी सॉल्ट, दे कैन लिव इन सॉल्ट, दे कैन लिव इन hot springs, they can be found in this marshy areas. फिर हमने जो पढ़ा सेकेंड टाइप यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया, another name for यू बैक्टीरिया is cyanobacteria, blue green algae. और उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी नॉस्टॉक which helps in fixing nitrogen from air. और हमने इसमें एग्जांपल, yes anyone? Air. नॉस्टॉक के अलावा मैंने कौन सी एग्जांपल बताई है? yes anyone? अच्छा, इसमें हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी थी यू बैक्टीरिया में. नॉस्टॉक के अलावा नाइट्रोकोकस व्हिच इज कीमोऑटोट्रोफिक, और इसी में नाइट्रोसोमोनास आल्सो.
एंड इसी में हमने पढ़ी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसमें डिजीज भी कॉज कर रहे हैं, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक भी है, राइजोबियम। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? यू बैक्टीरिया। और फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया था इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। तो ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो आप सिर्फ उसके यूजेस नहीं बताओगे, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी, तभी तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम ये तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? अरे इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज इफ वी आर गेटिंग डिजीजेस वी हैव टू स्टडी दिस आल्सो। तो इकोनॉमिकली इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द डिजीज, टू स्टडी दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और lastly I told you about mycoplasma, smallest living cell. They do not have cell wall. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था और आपको पता भी चल गया होगा कि they lack cell wall and they are called jokers of microbiology, and they can cause number of diseases. So they are pathogenic. They are not useful at all. They can cause diseases in plants as well as animals. They are not useful at all. How many of you are clear with the topic? Please raise your hand. Monira, shabash. Any doubt, Krish and Arsh? Any doubt, Krish and Arsh? बच्चे आपका नाम अर्शप्रीत है या अर्श? No, ma'am. Okay, Krish. Is this Ashpreet or Arshpreet? Ma'am, Ashpreet. Ashpreet. Okay, okay. Okay, got it, bete. So I hope everyone is clear with the topic now. And Yes. okay, there is one more topic left. I am just going to give a brief note on that topic. Types of bacteria on the basis of shape. Again, from your NCERT, basis of shape. तो टाइप्स में अगर हम पढ़ें तो कहते हैं बैक्टीरिया की शेप के ऊपर उनको अलग अलग करो। सर्कल शेप होती है तो उसको बोलते हैं कोकस। रॉड शेप होती है तो उसको नाम देते हैं बैसिलस। और कॉमा शेप्ड होती है उसको क्या नाम देंगे? Vibrio. विब्रियो। Vibrio. 3 तरह के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, दे मे बी कोकस, सर्कुलर, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप कॉलरा, विब्रियो। और विब्रियो में एक ही एग्जांपल है जिसका नाम क्या है? विब्रियो Cholera. Cholera. कोकस में, बैसिलस में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, बट what I am trying to tell you, there are different types of bacteria on the basis of their shape. They may be coccus, circular shape, rod shape bacillus, comma shape vibrio, and there is another one which is spiral shaped, spirulum. So 4 type के bacteria on the basis of their shape. That's it. So we are done with this, Monira. Please buy your NCERT book and try to read from your NCERT. If you have any doubts, stay back. Otherwise, you can leave the class. I hope everyone is clear with this topic. Take care, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Have ma'am. a Thank you, ma'am. that Yes.